दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तु ते भारत माता की Lisa. Welcome, my friends. My name is Dr. Usha Nair. I am the National Executive President with International Human Rights Council, and I'm also proud to mention that I am a permanent representative to the UN. ये UN क्यों हुआ वो मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, and I will get back to you. We are very, very special because we are one of the few NGOs जिनका यूनाइटेड नेशंस में इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड सोशल काउंसिल जो है उसमें वी होल्ड अ प्रेस्टिजियस कंसल्टेटिव स्टेटस एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस स्पेशल. सो कैन आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एस्पेशली फॉर द फार साइड ऑफ आवर फाउंडर एंड इंटरनेशनल चेयरमैन, क्योंकि अगर ये उन्होंने एक डिकेड पहले नहीं सोचा होता तो आज शायद हम आज इस स्पेशल फंक्शन के लिए प्रेजेंट नहीं होते. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वन एंड ऑल टू बी हियर टुडे and warm welcome once again. In fact, most of us know about International Human Rights Council. फिर भी एक छोटा सा introduction आपको देती हूँ. International Human Rights Council is one of the world's leading independent organizations. We are an NGO, that is a non-government organization. And we are dedicated to defending and protecting human rights. How we do that is by focusing international attention where human rights are violated. We give voice to the oppressed and hold oppressors accountable for their crimes. We are spread over all the states in India and with about 50,000 voluntary members associated with us and very enthusiastically attached. We also have international offices in almost 5 countries, which include representatives in Canada, Zambia, Zimbabwe, Nepal, Dubai, and of course the United States of America. As part of its regular activities over the past decade, we have been honoring and felicitating distinguished personalities, including individual, educational institutions, organizations, and these awards, which have been there for over 5 years now, is Dr. Babasaheb Ambedkar Nobel Awards, Dr. Radhakrishnan Memorial Awards. Now we have recently started for the last couple of years, which happens in Gujarat, Sardar Vallabhbhai Patel Awards, and these are very, very regular phenomenons which happen once every year. So this year we have specially instilled an award, which is the first awards function we are going to have today. We are headquartered in Mumbai, and that's why this prestigious Netaji Subhash Chandra Bose Bravery Awards have been announced. And congratulations to all those who have been here and who have been nominated and are going to be awarded today. Amongst the awardees in the past with the other awards have been institutions like KC College, Rizvi College, Hinduja College, National College. For a few of you who might be from out of Mumbai, these are amongst the top 10 best institutions, graduation, undergraduation in Mumbai. It includes Raheja College amongst others, and we have not only given institutions, but like I mentioned, we have honored doctors, lawyers, other professionals, some eminent union ministers to corporators, head of social organizations, news media and entertainment channels, and of course, our very integral partner is Bright Outdoor Media. In the recent past, the Nobel Awards have been conferred upon famous Bollywood personalities, including Dharmendra Ji, Johnny Lever, Rahul Roy, Anup Jalota, Anu Malik, Mahima Chaudhary, Udit Narayan, Prem Chopra ji, Rimi Sen, Mukesh Rishi, Raza Murad, Rajkumar Santoshi ji, Anu Sharma, amongst others. And yes, let us give ourselves a big round of applause for being here on time. Sorry we started a little late, but thank you so much, and let us
I thank all of you for allowing me to conduct this program to have a pleasant evening ahead. We will have a small video now on Netaji Subhash Chandra Bose. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। यह दिन विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। उनके पिता जानकीनाथ एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर कर लिया। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प लेकर राष्ट्र कर्म की राह पर निकल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े। इतना अधिक वह लोगों ने अपने नेता से प्रेम रखते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा थी। ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी सुभाष ने ICS से इस्तीफा दिया। इस बात पर उनके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। इसके तत्पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य भी गिर गया, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। 16 मार्च 1939 को नेताजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी ने अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हालांकि सरकार की तरफ से उनकी मृत्यु का जो समय दिया गया उसमें विवाद है, फिर भी जो समय माना जाता है वह है 16 अगस्त 1945। इस दिन नेताजी टोक्यो के लिए निकले, पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा सदा के लिए राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। आइए देखते हैं नेताजी ने कैसे उस समय विदेश से देश को संबोधित किया था। বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেকের মনে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে হয়তো হরিপুরায় গত সুরাট কংগ্রেসের পুনরভিনয় হতে পারে, কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে বড়ই সুখের কথা
যে ভগবানের আশীর্বাদে সেই সমস্ত আশঙ্কা অলিক প্রতিপন্ন হয়েছে। বন্ধুগণ, আর একটা কথা ভেবে আমার মনে আজ আনন্দ দেখা দিচ্ছে। এখানকার অভ্যর্থনা সমিতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মহাশয়ের পরিচালনায় যেভাবে কাজ করেছেন এবং যেভাবে আমাদের জন্য সমস্তই ব্যবস্থা সুবন্দোবস্ত করেছেন, এটা আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের বিষয়। তাই তাদের নিকট আমি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এতদ ব্যতীত এখানকার স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সেবা করেছেন, তাতে আমরা তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি এটা আমাদের পক্ষে পরম আনন্দের এবং গৌরবের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধী এখানে সশরীরে উপস্থিত থেকে তার আশীর্বাদ ও প্রেরণা আমাদের দিয়েছেন। বিজ্ঞান আমাদের কাজে সহায়তা এখানে করেছে এবং আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের প্রচার কার্যে ফিল্ম এবং রেডিও সাহায্য আরো বেশি নেব। সর্বশেষে আমি আপনাদের কাছে আমার অন্তরে নিবেদন জানাতে চাই। সে নিবেদন হচ্ছে এই যে আমাদের জাতির ব্রত এখন উদযাপন হয়নি, আমরা এখনো পরাধীন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতার পথে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি, কিন্তু তথাপি দুঃখের সঙ্গে এবং লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে এখনো ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ স্থাপিত হয় নাই। আগামী কয়েক মাস এবং কয়েক বছরের ঘটনার উপরেতে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। তাই আসুন আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে কাজে লেগে যাই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ আমরা পরিত্যাগ করি। আমরা সকলে এক প্রাণ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্রণী হয়ে আমার সামনেই চলি। বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। বন্দে মাতরম। Well, friends, what is the importance and what is the difference of these awards from the other awards that we have been doing every year? The basic importance of Netaji Subhash Chandra Bose Bravery Awards is to recognize outstanding achievement in the fields of grassroots level service, or it could be activism, policy making level, technical support, consultancy, peace and harmony, any kind of work or write-ups, training and research, CSR promotions, journalism, entertainment, leisure and patriotism. In fact, bravery goes hand in hand with patriotism. So we have some of the biggest, of course, maybe former, maybe retired, but they are still, I don't see any one of you as retired out here. In fact, such programs are basically specially for the armed forces and special bravery awards. So in this awards, the Netaji Subhash Chandra Bose Bravery Awards, we have covered military, the Air Force, the Indian Navy, Indian Police, and of course, there are others who have been doing brave deeds and achieved great heights, but may or may not have been recognized on a public platform, with the NGO till date. This gives us an opportunity for personalized presentations to honor recipients, and which not only dramatizes the non-civilian and civilians the achievements of their bravery. I will request Risaldar Major Ji. I forgot your name. Okay. Syed Mehtab Hussain Zaidi Ji, please come forward. I would like you to say a few words. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल्स जो आज इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट अवार्ड सुभाष चंद्र बोस अवार्ड जो देने जा रहा है सैनिकों को, जिसमें एयरफोर्स नेवी सभी हैं, उन सब की तरफ से भी मैं आपको
और पूरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की टीम को धन्यवाद देता हूं, जिसने इंडिया के अंदर हमारे सैनिकों को सम्मान दिया। और मुझे और भी ज़्यादा ये खुशी है कि मैंने जहाँ जहाँ ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेशन कारगिल जो भी हैं, ब्लू स्टार है, ऑपरेशन रक्षक है, मेरे साथ आज मेरे जवान जो मेरे साथ थे, जिन्होंने ऑपरेशंस में मेरे साथ भाग लिया, वो भी इसमें शामिल हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि ये इस मंच में आकर मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। और मुझे और भी इससे ज़्यादा और खुशी है कि मैं इसी जगह, इसी होटल सी प्रिंसेस में मैंने नोबल अवार्ड 2018 में लिया था, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर अवार्ड था। वो भी मैंने डॉक्टर सन्नी साहब के द्वारा लिया। तो मैं एक बार पूरी टीम की तरफ से, पूरी टीम को अपने सैनिकों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और कहते हैं डॉक्टर सन्नी साहब को भी, जो कि फाउंडर हैं हमारे, और जो एडवोकेट साहिल साहब हैं, वो इस टाइम है नहीं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ के हमारे टीम के। तो मैं एक बार पूरी टीम को, जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय भारत। Thank you. We have a little small surprise for all of you. So let's watch the next audio and video, and subsequently is the surprise. देखते भारत के महान सपूत, अमर सेनानी नेताजी सुभाष पूरे राष्ट्र में आजादी की प्राप्ति का संचार कर अंतर्ध्यान हो गए। जीवन में अनेक रोमांचकारी रहस्यों को जन्म देने वाले महानायक की मौत भी रहस्य बन गई। लेकिन उनके बाद आजादी का शंखनाद इतनी प्रखरता के साथ गूंजने लगा कि दास्ता की लंबी रात के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। हमारे वीर शहीदों, देश पर सर्वस्व करने वाले देशभक्तों, सुभाष और गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आगे अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। लेकिन हमने अनेक खौफनाक मंजर भी देखे। देश के टुकड़े, सांप्रदायिक उन्माद, मारकाट, लूट खसौट, आग की लपटें, नदियां, न जाने क्या क्या। 70 वर्ष बीत गए, घाव अब भी नहीं भरे। धार्मिक उन्माद, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, स्वार्थपरता के चलते हमारी पहचान कहीं खो गई। हैवानियत के नंगे नाच यहां वहां होने लगे। न सुरक्षा, न भरोसा। महानायक सुभाष बार बार याद आ रहा है। क्या यही सपना देखा था उसने अपनी प्राण प्रिय भारत माता का? क्या उसकी देशभक्ति के ऊंचे आदर्श, उसके त्याग, तपस्या, साधना, बलिदान, उदात्त जीवन और राष्ट्र के नव निर्माण की संकल्पना कहीं खो गई है? सुनो सुभाष, तुम्हें फिर आना होगा। देश तुम्हें पुकार रहा है। बोलो सुभाष, बोलो। हे मेरे हिंद देश, मैं आ रहा हूं, युवाओं की शक्ति बनकर, राष्ट्रभक्ति की अखंड चेतना बनकर, नव निर्माण का संकल्प बनकर, देश की महानता का उद्घोष बनकर। मुझे पूरा विश्वास है, अज्ञानता और भेदभाव की जंजीरें टूटेंगी, अमन और चैन का आनंद घर घर बिखरेगा, वेद और पुराणों के स्वर से सृष्टि महकेगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, नए भारत के हर एक बालक में जीवन भरने के लिए फिर से आ रहा है मां तेरा सुभाष।
नमस्ते दोस्तों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए इस मुख्तसर से वक्त पे आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैगाम को इस स्टेज प्ले के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीजिए पेश है प्ले आजाद हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैं क्या जी सत श्री अकाल। ओ जी क्या बात है। ओ जी मैंने पता चलिया है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आने वाले हैं, इसलिए जी मैं सबसे पहले ही बोल गया। ओ बल्ले बल्ले, आप सब भी आ चुके हो। वाह जी वाह, ओ जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राम राम प्रणाम। आप सबको पता है नेताजी आने वाले हैं। ओए मिलनपुरा, ओए यार बात तो मैं इन्होंने पहले ही बता दी था। अरे हरदीप भाई आप भी आ गए हो। ओ छड़ यार जपीना पाले। ओए जय हिंद। Good evening ladies and gentlemen. Oh Jesus, today I am very happy. You know, Subhash ji is coming. ओए gentlemen ना। Oh my God, what a surprise! Everybody is here. मिलनपुरा, जपिया पाले का इंग्लिश क्यों होता? अरे उसका वो कम एंड वो यार कम एंड ओए छड़ यार, मुझे याद आ गया। ओए जेंटलमैन ना, ओए कम नक बीच लग जा। इसका ट्रांसलेशन था। ओए नहीं ओए, ये इंडियन था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे आप सब से ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क की रहबरी के लिए हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस तशरीफ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ओए यारा, जपिया तो पाले। माशाअल्लाह, यह तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। आजाद हिंदुस्तान भाई, आजाद हिंदुस्तान। इस देश में सबसे पहले आजादी का झंडा नेताजी ने वर्ष 1947 में अंडमान निकोबार में फहरा दिया था। Hey friends, Netaji is coming. नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को अपने सीने में बसाए रखना। जय हिंद। मेरे प्यारे भारतवासियों, आज आजादी के 72 साल पूरे हो गए हैं और देश जिस तरीके से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जिन लोगों ने भी आजादी के संग्राम में अपना बलिदान दिया है, वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हुआ है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं लोगों को जिन्होंने मातृभूमि के प्रेम में अपने जीवन को देश हित में न्यौछावर कर दिया। बस सुधार की गुंजाइश हरदम होती है और आज के भारत में भी एक सुधार की गुंजाइश है। मैं सुभाष चंद्र बोस आप लोगों से ये अपील करता हूं कि इस देश में 3 से 18 साल के मासूम बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल है नेताजी, बिल्कुल है नेताजी। बच्चे मोबाइल में इस कदर डूब गए हैं कि हमें तो डर लगता है कि कहीं वो अपनी नजर के साथ साथ अपना मुस्तकबिल भी ना बेनूर कर दे। Yes, Netaji, we are with you. Your decision is great. Many countries will start banning these cell phones to these age groups because it also affects our society and our education system. नेताजी, सुना है कि कई जगहों पर मोबाइल बम की तरह था और कई जीवन नष्ट हो गए। इससे निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन ने न जाने कितनों को पागल बना दिया है। नेताजी, इस मोबाइल ने न जाने कितने बच्चों की मासूमियत छीन ली, उनसे उनके बचपना तक छीन लिया। और यार अभी जिहादियां छीन लिया। इस मिट्टी से होने का रिश्ता छीन लिया। वो प्यार, वो मोहब्बत सब छीन लिया।
सहयोग कीजिए। चलो दिल्ली।